One is कि you are present not physically but virtually you are present in almost more than 10 million homes, जहाँ पे लोग कहते हैं कि आज केवीएस मदान पढ़ना है, तो मुझे लगता है अच्छा केवीएस मदान को पढ़ना है, केवीएस मदान की किताब पढ़नी है। That's really कभी कभी कोई कहता है केवीएस मदान गुम हो गए, तो मुझे लगता है गुम मेरे को ये लगता है कि मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वो कम है। मतलब हर घर में हर दिन जिस घर में आपकी किताबें हैं ना, हर दिन आपका नाम लिया जाता है, कभी आप गुम हो जाते हैं, कभी आप डिस्कस किए जाते हैं। कभी सपनों में भी आते हैं, असेंस बन जाते हैं कि जब तक वो बुक नहीं पढ़ी तब तक कल्याण नहीं होने वाला। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Welcome all of you to this wonderful interactive session with KVS Madan sir. So he has already joined with Good morning, us, sir. and from the bottom of my heart, I welcome Madan sir. Welcome, sir. Good morning. Thank you so much. Good morning, sir. Even I am delighted to join a session, such a wonderful session. Thank you so much, sir. Here we all have joined, mostly the students are for NET exam, preparing for competitive exams and looking for the guidance for the wonderful person, the best-selling author of the country. So I would request you to give little bit idea of what exactly you inspired you to write the book and how the students should exactly go through a step-by-step action plan to prepare through your book, because your book is the only book which I believe is having the capability to get good marks in paper one. And thank you. Thank you for such wonderful comments. कि जैसे आपका क्वेश्चन है कि how I started the journey to write a book. So even that was very difficult. There were so many issues. So when I started writing this book, so earlier I was participant in so many UGC NET conferences. So I got some exposure. Ki what should be the exam? So I started my journey with the previous year question paper themselves. कि उसमें क्या होता है कि what is given in them and what should be the say level of the students. So at that time it was the scenario that paper one was not directly counted into the final list. So they used to have some phase like scenario. Ki first you have to say qualify this exam. Qualify in the sense that you have to score a particular percentage in this exam. Then you will be say taken to the next level. So that was the kind of scenario. So when I wrote this book, so it was a very difficult task. Ki student they have to get only 40% marks, and that might not be a very big issue for them. So still I say I had to go for it because I saw कि there is potential in this market. तो उस केस में मैंने ये किया कि जो बुक्स हैं एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में तो उनको देखा. बट दैट वाज माय ओनली से फर्स्ट टाइम जर्नी टू दोस बुक्स कि हाँ जी मैंने उनको देख लिया कि दिस शुड बी द दिस इज द लेवल दैट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. तो उसको मैंने 2 या 3 घंटे देखा कि व्हाट इज इन दोस बुक्स एंड व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय ओन एंड कि मैंने जो बुक लिखनी है वो किस टाइप से होनी चाहिए. तो दैट वे आई स्टार्टेड द जर्नी. तो आई went for a big plan for it कि I have to write से कि what is given in the syllabus. तो उसमें टॉपिक वाइज होता है कि इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, एंड जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस हैं तो what should be the scene about them कि फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस हैं they were actually very important to me. So that way I went for the journey. So that started मतलब that way. And at that time there was no say external help available to us like we can see today with the help of the technology. So it has to be very innovative journey कि whatever you do that has to be done by yourself only. तो उसमें ये नहीं है कि इसमें कोई we can go for the shortcuts etc. And my book is to be different from the other books. तो ये भी एक mind में perspective था कि in case कि I'm going to write the same book, so that will not say complete my journey कि जो मैं स्टूडेंट को देना चाहता हूँ. तो इट शुड नॉट बी मतलब डन लाइक दैट. तो वो मेरे माइंड में पर्सपेक्टिव था. एंड आई एम वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आल्सो कि वट एवर आई राइट तो दैट शुड बी टोटली ऑथेंटिक. तो दैट वे आई स्टार्टेड द जर्नी एंड इट टेक्स अराउंड 7-8 months at to be at the minimal. So this may go up to 1 year.
So I think at that time it took say 10 months. And you are in a wonderful habit of updating it. Every year you update and Exactly. release new edition. Because that habit has been inculcated from the beginning itself. उसमें ये नहीं है कि I have to adopt this habit at a later stage. तो जो operation है, that has been my hallmark, and the Pearson has been very cooperative in that. कि in case कि I try to do something on the last day itself, so they will definitely do it. कि they will say कि yes sir, कि we are going to do it. So that was a way. सर जब ये किताब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो आपके माइंड में क्या एक्शन प्लान था स्टूडेंट के लिए कि व्हेन दे विल हैव द बुक इन देयर हैंड व्हाट विल बी देयर एक्शन प्लान एग्जैक्टली? No, actually, it was a kind of service to the society. So numbers were not in my mind. I have to go for this number, that number. क्योंकि उसमें ये था कि अब तो जो स्टूडेंट है, जो उनकी परफॉर्मेंस लेवल है, तो दैट हैज टू बी वेरी मतलब mediocre टाइप, कि उनको 40% मार्क्स एंड दे हैव टू बी स्कोर्ड. So that way the things were very different. But later on we can see to it कि these marks are integrated into the final list. तो उससे जो जर्नी है वो मतलब it came to a innovative बात कि उसमें मेरे को मोटिवेशन मिलती गई कि I can do say more and more about this book. तो after the say digitalization of this exam कि जैसे जो NTA है, they have started the say this concept. तो उसमें जो जर्नी है that went into a different direction. तो उसमें ये है कि जो स्टूडेंट है they have to appear for the 15-16 exams, ठीक है, for the paper one itself. तो that way कि उसमें जो पर्सपेक्टिव है वो ओपन माइंडेड हो गया कि आई हैव टू इनकलकुलेट से ईच एंड एवरीथिंग. उसमें ये नहीं है कि इफ्स एंड बट्स वाली स्टोरी नहीं थी कि हाँ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है. बट आई कुड सी कि उसमें ये है कि द एनटीए दे विल पिक ए सिंगल टॉपिक, लाइक कि इन केस की आई टेक द एग्जांपल ऑफ द पोल्यूशन या जैसे हैवी मेटल्स हैं या लाइक वी कैन टेक से एनी काइंड ऑफ द एग्जांपल. तो दे आर गोइंग टू पुट से एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस ऑन इट. तो उसमें मेरी ऑप्शन खत्म हो जाती है कि आई हैव टू से डील विद ओनली से इट्स डेफिनेशन पार्ट एंड आई हैव टू डील ओनली विद से कि इसमें जो डिसीजेज है वो कौन सी होने वाली है. तो आई हैव टू कवर से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. उसमें लाइक कि वी कवर से एवरीथिंग की डिमेंशिया क्या होती है, अल्जाइमर डिसीज है वो क्या होती है, पार्किंसंस क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, लाइकवाइज. तो उसमें जो पर्सपेक्टिव है वो मतलब वाइडन होता गया. तो दैट कैन बी टेकन एज एन एडिशन. लेकिन बुक में चैलेंज ये रहता है कि यू हैव टू गो फॉर द सेम मिनिमल नंबर ऑफ द पेजेस. क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास इतना टाइम होता नहीं है कि दे कैन गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग से एवरी टाइम. तो उनके पास लिमिटेड टाइम है एंड दे हैव टू गो फॉर द रिवीजन ऑफ द बुक आल्सो एट द मतलब कि वंस द एग्जाम इज टू स्टार्ट. तो उस टाइम जो 15-20 डेज होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी क्रूशियल. तो उस वे में वी हैव टू से रीडू से एवरीथिंग कि उसमें जो लाइकवाइज कि वी हैव टू गिव इट इन द शॉर्ट फॉर्म and we have to be explanatory also so that it serves the purpose of the exam that way. लिटरेचर में एक फिलॉसफी है कि एक बार ऑथर ने किताब लिख दिया तो अब वो रीडर के लिए डेड हो गया है. अब रीडर के पास वो जाके नॉक करके बता नहीं सकता है कि मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मेरा क्या इंटेंशन था. Exactly. तो आई थिंक द राइट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन आस्क यू कि आपने किस इंटेंशन से लिखा है और आपकी किताब हाथ में ले तो कैसे पढ़नी चाहिए. तो उसमें बेसिक कंसेप्ट यही थी कि आई नेवर वेंट फॉर द क्वांटिटी, कितनी नंबर बिकनी चाहिए दिस दैट हो गया. तो दैट वाज सिंपली आउट ऑफ माय माइंड. तो आई फोकस ओनली ऑन द कंटेंट पार्ट कि इट शुड सर्व द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स. उनको ये लगना चाहिए कि जो एग्जाम वो देने जा रहे हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तो दैट वाज द ओनली थिंग आई कुड डू. तो आई फोकस्ड ऑन द कंटेंट पार्ट रादर देन कि आई शुड गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग. कि इस बुक को मतलब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है दैट इज टू बी गिवन टू द कंटेंट्स, और जो सेकेंडरी होती है कि आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स होता कि इसको कैसे लेके जाना है, जो स्टूडेंट्स हैं उसको कैसे वो देखेंगे लाइकवाइज है. तो इसमें जितने भी आइडियाज आए हैं वो सेल्फ जनरेटेड थे, ऑटोमेटिक थे कि इसमें इस टाइप का एडिशन करना है, इस टाइप का एडिशन करना है, इस टाइप का एडिशन करना है. एंड दैट जर्नी इज नेवर कंप्लीट, आई शुड से दैट यू हैव टू डू सम मोर एंड मोर थिंग्स to stay at the same level, you can say that, because the expectation of the student, they also go up with the quality they see to it. कि उनको ये लगता है कि जब भी बुक नहीं आएगी तो उसमें कुछ एडिशनल कंटेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं. तो that is a challenge also कि you have to confine the book to the 700 pages, लेकिन उसमें जो कंटेंट है everything is to be included in that, or likewise. As I am a big fan of you, I have gone through almost all the editions of your book, and in every edition I find you are every time you are simplifying the concepts. नहीं, exactly.
that can be termed as a customization. You can say that because I am not a student of literature that I can move into the vast horizon of the literature कि I have to deal with each and every part. तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि यू कैन गो इनोवेटिव टू एनी एक्सटेंट, उसमें पॉसिबिलिटी बनी रहती है. एंड जो स्टूडेंट्स हैं इन द लिटरेचर दे फाइंड इट वंडरफुल टू गो टू एनी एक्सटेंट कि दे फाइंड इट मोर एंड मोर इंटरेस्टेड. यहाँ पे जो केस है वो होता है उल्टा कि जो स्टूडेंट दे वांट टू कन्फाइन देमसेल्व्स टू द सेम नंबर ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस. So that way. True, very true, sir. So if any student is starting his preparation, तो उसके माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या हम चैप्टर वाइज जाएं, चैप्टर 1 2 3 जाएं, या फिर बीच में कहीं से शुरू हो जाएं, या जो सबसे डिफिकल्ट है उसको शुरू करें. I think they should start with the chapter where they don't face any difficulty so that they can develop their confidence. So that is very important. कि in case कि उनको ये है कि they have to be innovative also. It is always hit and trial कि जो first instance है, second instance है, तो they might not be very successful. तो उसमें ये होता है कि you have to take it as a consistent journey कि उसको अपने follow करना है, तो that way it pays मतलब one day. इसमें ये नहीं है कि फाइनल डेस्टिनेशन हमें पता है कि वी आर गोइंग टू राइट इट इन दिस मैनर एंड द मटेरियल विल बी एक्सेप्टेड बाय द स्टूडेंट. तो वो जो सीन है वो मतलब बहुत कम लोगों को मिलता है. दिस कैन बी मेट आल्सो, उसमें कोई मतलब उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा कि इफ देयर कांसेप्ट इज टोटली इज डिफरेंट एंड इनोवेटिव आल्सो. और जो स्टूडेंट है उनको इस टाइप का मटेरियल चाहिए होता है कि देयर इज ए डिमांड पोटेंशियल फॉर इट, तो दैट वे इट कैन हिट आल्सो. बट इन नॉर्मल आई शुड से कि in case ki they want to start this kind of journey, so they should look at the market potential. जबकि मैंने follow इसको कम किया है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि I was say after that only, लेकिन उसमें ये होता है कि once you try to approach some say publisher, तो उसमें जो first question उनके mind में यही होता है कि इसका जो market potential है वो कितना होता है. And I should say this कि even जो पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है या पब्लिशर होते हैं तो उनको भी उसका 100% आइडिया नहीं होता कि हाँ जी इसमें क्या लिखना है नहीं लिखना. तो उसमें भी टेन ट्रायल होता है कि इवन दे हैव टू बी कन्विंस्ड कि हाँ भैया इसमें मार्केट पोटेंशियल हो सकता है, इसमें इतने स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, दिस दैट है. तो दैट एस्पेक्ट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट टू मतलब द प्रोस्पेक्टिव ऑथर्स. तो इस टाइप से इसको लेना चाहिए. Very true. Also, you keep on adding some more questions to every chapter. हर बार आप कुछ नया क्वेश्चन उसमें ऐड करते चले जाते हैं. सो वो क्या पर्सपेक्टिव होता है आपको कि पहले वो चैप्टर को पढ़ें और फिर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें फिर अगले चैप्टर में जाएं, समथिंग लाइक दिस? नहीं एग्जैक्टली कि उसमें ये होता है कि जब भी आई वांट टू गो फॉर द न्यू मटेरियल, तो ऐसा नहीं कि जो पुराना मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट इज टू बी आउटडेटेड, कि दैट इज स्टिल इम्पोर्टेंट टू अस. इन केस की आई लुक एट से टुडेज एग्जाम, द क्वेश्चंस व्हिच वर अपीयरिंग इन 99 2000 2005, so they still may appear in one form or the other. तो दैट वे वी हैव टू से बी वेरी कंसिस्टेंट कि पुरानी कंटेंट है उनको हमने लूज नहीं करना. एट द सेम टाइम मतलब वी हैव टू डू इट इन अ वेरी साइमल्टेनियस मैनर कि वी हैव टू गो फॉर द एडिशन ऑफ द न्यू क्वेश्चंस. तो दैट वे इट हैपेंस. उसमें ये होता है कि उनकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है तो उस पे आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि उसको कितना कैसे अकोमोडेट करना है. आपके हिसाब से सर पहला चैप्टर किसी XYZ स्टूडेंट को जिसको कुछ नहीं पता पेपर 1 के बारे में, तो सबसे पहला चैप्टर आपकी बुक का कौन सा पढ़ना चाहिए उसे? I think this can be teaching aptitude. Teaching aptitude, okay. Because that is going to be basic. Correct. Then they can move to say communication, that is a 4th unit. So that way it should happen. कि उसमें consistency है, matching है. कि teaching aptitude में ये होता है कि we come to know कि what should be given to, what should be delivered to the student. Communication में ये होता है कि what is the mode of the delivery. So that way this can be मतलब identified. Like in case I take example of the 5th unit, so we can go for the 7th unit. कि 5th unit है that is linked with the mathematics, और जो 7th unit है so that is linked with the data interpretation. So we can find the consistency between the two units. So this can be the way to identify. But still I will say कि जो student है उनकी अपनी एक priority होती है because they are the PG student. तो this cannot be taken in a जिसको हम कहते हैं ना कि spoon fed manner है, तो उसमें हम ले नहीं सकते. तो they have to start. लेकिन मेरी अपनी एक suggestion है कि they should start with the easiest chapter. उनको ये लगता है कि teaching aptitude है वो easy है. In case कि I try to take the example of the comprehension कि जो students हैं, जो literature students हैं, उनके लिए वो भी हो सकता है. Even जो comprehension है, that is not going to be an easy task.
क्योंकि जो लिटरेचर है तो उसमें ये होता है कि वी हैव टू गो इनटू हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, कि उसमें देन वी कम टू द पर्सपेक्टिव, जो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है। बट जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें ये होता है कि मतलब दे कैन डील विद द करंट टॉपिक्स, कि लाइक कि वी कैन लुक एट द वार, कि यूक्रेन रशिया वार है उसमें क्या सीन चल रहा है, या चंद्रयान यात्रा है तो उसमें क्या सीन चल रहा है, या लाइकवाइज वी कैन से टू इट कि जैसे इंडिया है उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल कैसा है, तो दे कैन डील विद ईच एंड एवरी टॉपिक। ट्रू सर, वेरी वाइज सजेशन दैट यू गिव। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो हार्ड वाले से स्टार्ट करते हैं और एक दो चैप्टर पढ़ के छूट जाता है, समझ एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। तो उसमें ये होता है कि स्पेशली जो स्टूडेंट है फॉर द कॉम्प्रिहेंशन यूनिट, तो दे कैन गो फॉर द लाइक की एडिटोरियल्स, कि जो न्यूज़पेपर है, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस है, जो द हिंदू है दैट्स कैन बी टफ फॉर समवन, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस है तो उसमें देखना है उनको कि व्हाट इज अपीयरिंग इन द एडिटोरियल्स, तो दे कैन पिक दोस टॉपिक्स। उनको ये नहीं है कि दे हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ द मेमोराइजेशन, उसको पढ़ लें कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है कि दैट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको पेपर 1 में कौन सा लगा? In case ki you ask about the literature student, so this should be unit 6. That is a logical reasoning this side हो गया, so they may find it difficult also. But at the same time they find से मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वेरी डिफिकल्ट। उनको ये लगता है कि भैया ये तो हम कर नहीं पाएंगे उसमें, मतलब दे मतलब डोंट बिगिन इवन, वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स होता ही टफ है, कि जैसे उसका वो लेगेसी वेरिएंट बना हुआ है ना, तो इट्स दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। तो उसको उनको देखना चाहिए कि मैथमेटिक्स है उसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, वो 7th 8th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन होते हैं, दे हैव टू पिक द आइडिया एंड दे हैव टू स्टार्ट समवेयर। क्योंकि जो मैथमेटिक्स है उसमें ये होता है कि उसमें यू हैव टू फॉलो द 3 रूल्स, कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। So unless and until you do the practice, so you will not be able to move forward. आपके हिसाब से सर कितना दिन लगना चाहिए आपकी किताब को कंप्लीट करके समझने में? ये बहुत ही अच्छा आपका, इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। इसमें बेसिकली ये होता है कि वंस दे वांट टू गेट इनटू द टीचिंग करियर, कि आपने ये सोचा है कि आपकी एमए फर्स्ट ईयर है वो स्टार्ट हो चुकी है, या आपकी बीकॉम है या एमए है वो चल रही है लाइकवाइज है, तो वंस यू गो इनटू दैट काइंड ऑफ आइडिया, तो आपको ये पता चल जाता है कि जो पेपर 1 है उसमें जो क्वेश्चन है वो कितने इनोवेटिव पूछे जा रहे हैं। तो ये मेरी एक वैसे इंटेंशन रहती है कि जो स्टूडेंट है दे शुड पिक द आइडिया ऑफ गेटिंग इनटू टीचिंग at a very early stage, कि उनको ये होना चाहिए कि they have to become say professor, they have to become say researcher, तो that way it becomes a very important कि उनको पहले से ही पता हो कि अगर वो एमए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या व्हाटसोएवर बीसीए कर रहे हैं, तो उनको ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, लाइक कि आई हैव गिवन से सजेशंस कि मैथमेटिक्स है उसकी प्रैक्टिस है वो साथ के साथ स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई हैव फेल्ट कि जो एज दिस पेपर इज बीइंग से इंटीग्रेटेड इनटू द फाइनल लिस्ट, तो इसमें क्या है कि जो सिंगल मार्क है वो काउंट करता है आपका, उसमें ये नहीं होता कि नहीं यार ठीक है ये हमने कर लिया नहीं कर लिया। तो अगर मैं फिर उसमें मैथमेटिक्स का एग्जांपल लूं, तो मैथमेटिक्स में भी क्या होता है कि दे आर गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, कि मान लो 5th क्वेश्चन आ गया या 10th क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया उसमें 3 या 4 फर्दर क्वेश्चंस हैं, तो जो सब ऑप्शंस जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल डीलिंग विद द डिफरेंट क्वेश्चंस। तो ये जो सिनेरियो होता है वो तभी आप डील कर पाते हो कि मतलब यू हैव टू डू सम से एम्पल प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग्स। आपको ये वो तो पता है कि यू हैव टू से पिक से इंग्लिश लिटरेचर एज अ करियर, लेकिन उसमें ये होता है कि जब आपने उस टाइप का करियर पिक करना है, आपको भी ये पता है कि भाई ये जो मैथमेटिक्स है दिस कैन बी डाइसी फॉर यू, तो उसकी जो जो स्टार्टिंग है दैट शुड बी डन इन ए वेरी टाइमली मैनर। द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग, ताकि उनको ये ना लगे कि एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, कि जब एग्जाम उन लोगों ने देना है तो उनके लिए पेपर 2 है दैट इज इंपॉर्टेंट, पेपर 1 है वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड बट दे आर टेंस कि नहीं भाई मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता, जबकि मैथमेटिक्स है उसमें 7-8 क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं, कि इन केस की ट्राई टू कंबाइन से मैथमेटिक्स है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन हो गए, प्लस जो 5 क्वेश्चन है वो डाटा इंटरप्रिटेशन के हो गए, तो इन कॉम्बिनेशन दे आर बीइंग से दे विल बी आस्क्ड 7-8 क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन है उनकी जो सडन जो प्रिपरेशन है ना दैट बिकम्स ए वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दे थिंक अबाउट इट एट ए वेरी लेट स्टेज, तो उसमें ये होता है कि 6 मंथ का पर्सपेक्टिव है वो तो लेके चलना ही चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, बहुत वेरी वाइज सजेशन। क्योंकि जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट लास्ट के 2 महीने जब डेट अनाउंस हो जाते हैं तब वो दौड़ना शुरू करते हैं। Exactly. वो जो लास्ट 2 मंथ होते हैं ना वो बेसिकली होते हैं यू हैव टू गो फॉर द रिवीजन ऑफ द थिंग्स, कि जो आपने किया हुआ है तो उनको यू हैव टू डू देम, यू हैव टू रीडू द थिंग्स, तो उसमें कि यू हैव टू स्पेंड से 2 मंथ्स।
True, sir. Sir, I will take some of the questions from my students, but उसके पहले मेरा एक personal सवाल है आपसे. Definitely. That is, how do you keep yourself so fit and fine? Even that is a very big question. And that is a question for the whole society also. Yes, yes, very true. तो उसमें ये होता है कि जो the time I get up in the morning, that is 5:30 or 6 o'clock. तो ये मतलब पॉइंट है कि उसमें थोड़ा योगा वोगा कर लेते हैं, सैर सपाटा है वो कर लेते हैं लाइकवाइज. और जो मेरा खाने पीने का रूटीन है, इन केस की यू टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल, तो दैट इज एब्सोल्युटली सिंपल. कि उसमें सिंपल से सिंपल खाना खाओ एंड उसमें लाइक कि वी हैव टू टेक से केयर ऑफ सर्टन प्रिकॉशंस. कि उसमें अपने जो घी है, या आपको ये लगता है कि आपने सुबह कुछ ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल एट अ लेटर स्टेज. तो वो काम नहीं करना. जो फ्रूट्स है उनको आप खाओ एंड लाइकवाइज कि हेल्दी चीजें खाओगे तो उससे उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपका जो माइंड सेट है वो भी हेल्दी रहता है. तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपकी That is the secret of your creative mind. And that becomes a compulsion also sometimes. True, very true. Before it becomes a compulsion, so you should go for it. But how do you get the motivation to maintain this consistency? नहीं, इसमें यही है कि यू कैन से दिस कि मेरे को एक मोटिवेशन रहती है फ्रॉम द इंडियन कंसेप्ट इटसेल्फ कि इंडियन जो सिस्टम है तो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट. उसमें लाइफस्टाइल है वो भी गिवन है, उसमें लाइक कि दे गिव अस सो मेनी थिंग्स, तो वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट एवरीथिंग. तो ये एक एस्पेक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट. उसमें ये नहीं होता कि जो एलोपैथिक मेडिसिन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, उसमें दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस कि यू हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन ये है कि इन केस की यू गो फॉर ए गुड से लाइफस्टाइल, तो आपको हो सकता है कि उनकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े एट अ लेटर स्टेज. तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. उससे आपका एक पॉजिटिव जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होता है. दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट. Very true, very true. Thank you so much for sharing this special secret. ये सबसे बड़ा secret था. Okay, so now I'll request the students to raise your hand one by one and ask your query if you have any. Shubham. So first of all, sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. आप अपना इतना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दे रहे हैं. सर मेरा क्वेश्चन है सर कि आपकी ये बुक बहुत मेगा हिट रही है. मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. 2022 में मैंने इसे खरीदा. थैंक यू एंड सो नाइस ऑफ यू. मैं अभी अच्छे से इसको स्टडी किया हूँ. सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अब आगे का क्या प्लान है सर? आपने इसे इतनी अच्छी सक्सेस अचीव की, अब आपको कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है कि और किन चीजों पे काम करने? आगे प्लान जो है इट्स क्वाइट सिंपल टू मी, टू मेक इट मोर यूजफुल टू द स्टूडेंट्स. एंड उसका कोई एंड नहीं है लाइकवाइज. सर एक्सेप्ट एज सिंपल एज दैट कि इन केस की वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी, वी ऑलवेज से कि इट विल बी मतलब कि व्हाट शुड बी इट्स फ्यूचर. एट दैट टाइम वी थिंक कि इट्स द एंड ऑफ द जर्नी, कि इससे अब जो बेटर है क्या हो सकता है. बट वी ऑलवेज फाइंड कि समथिंग इज मतलब बेटर इज टू बी गिवन टू द मार्केट. इस टाइप से चलता है सीन. सर अभी और भी बुक पे काम कर रहे हैं क्या आपकी? अदर्स बुक्स को पब्लिश करने में आप क्या कोई दूसरी बुक पे काम कर रहे हैं क्या? अभी मैंने कॉमर्स है उसकी बुक कंप्लीट की है. ओके सर. कॉमर्स की पेपर 2 की ना, तो दैट बुक वाज कंप्लीटेड 3-4 years बैक. तो देन आई स्टार्टेड विद द हिंदी वर्जन ऑफ इट. तो जो दैट विल हिट द मार्केट से इन ए मंथ और सो. माइट बी मतलब दैट विल हैपन इन द अक्टूबर इटसेल्फ कि जो पेपर 2 वाणिज्य जिसको हम कहते हैं, यस तो दैट इज लाइकली टू हिट द मार्केट. ओके सर. सर टाइम डिवाइड कैसे करते हैं सर? जैसे आपके पास तो और भी बहुत सारा काम होगा, कोई बुक पब्लिश करनी है तो डेली कितना टाइम देना है? ऐसा कुछ फिक्स रहता है कि किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन ऐसा कुछ? Again, it's a very beautiful question. How to divide the time? Very true. तो उसकी एक कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ती है. इन केस की आई एम ट्राइंग टू बाय टाइम फ्रॉम द मार्केट कि जो एग्जिस्टिंग टाइम है उसको मैंने मतलब मैनेज करना है. तो उसमें ये होता है कि यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज कि आपकी ये प्रायोरिटीज है कि ड्यूरिंग द डे यू हैव टू कंप्लीट सेट दिस टास्क. तो वो मेरे लिए मेन मोटिवेशन रहती है कि जो अपने टास्क है पहले उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो उनको हमने ये देख के चला है कि इसमें मैंने अपनी जो यूनिट है, मान लो यूनिट 9 या 10 है, तो उसमें कौन से कंसेप्ट्स हैं विच आर टू बी कंप्लीटेड. तो उसको मैं आइडेंटिफाई करके चलता हूँ कि व्हाट इज टू बी डन, मतलब क्या किया जा सकता है उसमें. तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया. सेकंड है कि माई जो रिलेटिव है दे गेट से वेरी
एंग्विश्ड, एंग्री तो नहीं मैं बोलूंगा, they get anguished कि if I am not able to give time to them, कि मैंने फोन किया था आपने पिक नहीं किया, this and that है, जबकि मेरा फोन है वो थोड़ा स्विच ऑफ रहता है in those kind of the situations क्योंकि आपको जब डिस्ट्रैक्शन हो जाए ना कि यू आर इन्वॉल्व इन सम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, मैं अपनी प्रायोरिटी बता रहा हूँ, दिस माइट बी द डिफरेंट केस विद द अदर पीपल आल्सो, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि दिस शुड बी टेकन एज आइडियल सिचुएशन। तो उसमें ये होता है कि आपको जो अपनी प्रायोरिटीज है वो सेट करनी है कि इन केस की आई गेट इनटू से हैंकी पैंकी सिचुएशंस, तो देयर इज नो एंड टू देम। तो आपको अपनी जो प्रायोरिटीज है उनको आपने सेट करना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, ये आपकी प्रायोरिटीज है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टाइम आल्सो, कि उसके अकॉर्डिंग आपने कितना टाइम है उसमें डिवोट करना है। लाइकवाइज कि इन केस की आई एम वर्किंग फॉर 2 आवर 3 आवर, तो उसमें ये होता है कि उसके बाद आई विल टेक से रेस्ट फॉर 1 आवर 2 आवर, जितना भी मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है ना, कि उसमें ये है कि आई एम स्पेंडिंग से 8-9 आवर्स ऑन द बुक्स इटसेल्फ, तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रबल आ जाती है, तो दैट वे, तो इसमें ये मतलब इट्स ए कंप्लीट कस्टमाइजेशन अगेन। थैंक यू सर फॉर योर क्रूशियल टाइम सर, और आने वाले आपके बुक्स के लिए, अदर चीजों के बुक्स है वो मार्केट में जल्दी आने वाली है, वेरी सून। ओके सर, दैट्स ऑल माय साइड सर। सर एक पॉइंट मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपने ये जो कहा ना कि किसी को गुस्सा आता है तो आए, मुझे मेरी प्रायोरिटी है वो मुझे करना है। Even that can be taken as a obsession also. Yes, Situation है कि you have to set your task. क्योंकि मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है ना, you have to look at the market itself. उसमें ये नहीं होता कि जो स्टूडेंट हैं they are waiting for my book and I am busy with certain things. तो उसमें ये है कि जो टाइम होता है जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री लेती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि बिकॉज यू बिलोंग टू सेम कम्युनिटी, कि यू हैव रिटन सो मेनी गुड बुक्स, 6-7 है, एंड यू आर एसोसिएटेड विद सच ए गुड मतलब रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, तो दैट वे तो कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट है दैट इज टू बी डन। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। एंड जो लोग है आपकी प्रायोरिटी को समझ नहीं पाते। No, never. उनको अपनी प्रायोरिटी पता है, उनको ये है कि यार बुक्स है, पेजेस ही भरने हैं और क्या करना है। 1 2 3 हो गया एंड द थिंग्स आर डन एंड दे आर हैप्पी। करेक्ट वेरी ट्रू सर। एक क्वेश्चन रश्मिता का है। यस रश्मिता। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं रेगुलर बेसिस पे आपकी बुक फॉलो करती हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था सर, सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके साथ इंटरेक्शन होगा। थैंक यू सो मच सर कि आप आए, हमारे साथ इंटरेक्शन किए। एंड सर मेरी क्वेश्चन, आप तो सपने में ये सोचो कि हाउ विल यू इंटरेक्ट विद द पीपल एट अ लेटर स्टेज। यस सर, थैंक यू। एंड सर मेरी क्वेश्चन यही है कि अभी जैसे सर करंट एग्जाम पैटर्न चल रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10 यूनिट्स के हैं, उनमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं सर अभी उनमें से टोटली क्वेश्चन नहीं आते हैं सर एग्जाम में। जैसे अभी कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो हम उस क्वेश्चन से कैसे डील करें सर? एंटायर सिलेबस को फॉलो करें या फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी हिसाब से हमारी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें सर? आपका जो क्वेश्चन है इट्स अगेन वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, कि एग्जाम है उसमें 50 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन जो हमारी ट्रबल ये स्टार्ट होती है कि दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन इन द 15 एग्जाम्स। अंडरस्टैंड दैट और नॉट? कि वालों 15 एग्जाम्स होने हैं और इन्वायरमेंट है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो 15 into 5 कितना हो गया? 75 हो गया। वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि हम मतलब एज एन ऑथर मैं ये अज्यूम नहीं करके चलता कि इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। मेरा जो पर्सपेक्टिव है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, कि उसमें 75 क्वेश्चन है, दे कैन बी आस्क्ड, दिस माइट बी 75, दिस माइट बी 50 आल्सो, मतलब वो एक दैट इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, कि मान लो आपको पता है कि 50 क्वेश्चन है, दे विल बी आस्क्ड फ्रॉम द से इन्वायरमेंट है या हायर एजुकेशन है, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। तो वी हैव टू इंक्लूड से ईच एंड एवरीथिंग। और फिर मैंने ये होता है कि इन केस की आई टेक द एग्जांपल कि जैसे हैवी मेटल्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ द यूनिट 9, तो हैवी मेटल में दे आर गोइंग टू आस्क यू 5 to 6 क्वेश्चन। हो सकता है 3-4 साल पहले कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा ही ना गया हो कि दैट इज लिंक्ड टू द हैवी मेटल, बट वंस इट्स कम टू द माइंड ऑफ द से पेपर सेटर कि उसको ये लगता है कि हैवी मेटल है, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर गोइंग टू पुट यू से 5-6 क्वेश्चन ऑन दोस थिंग्स। ओके और नॉट? तो उसमें लाइक वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। एज ए स्टूडेंट यू आर जस्टिफाइड, उसको मैं मतलब डिनाई नहीं कर रहा,
बट उसमें ये होता है कि वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज, जिसको हम कहते हैं ना कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, Yes, तो वी हैव yes, टू sir. एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग, दैट वे थिंग्स मूव ऑन। Thank you, sir. Thank you so much. सर मेरे और Thank you. एक क्वेश्चन था सर। सर यस जैसे मेरा मैथ एंड डीआई थोड़ा वीक पोर्शन है, तो मैं यही करती हूँ कि वो दोनों बहुत टाइम टेकिंग मुझे लगता है, और मुझे थोड़ा सा जैसे मेरा मैथ छूट गया है बहुत साल पहले ही, तो अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सर वो दोनों चैप्टर। तो इसीलिए मैं स्किप करके जो चैप्टर में मैं थोड़ा सा बेटर हूँ उसमें ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो क्या ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है पढ़ने के लिए, या हमें टाइम टेकिंग हो या प्रैक्टिस ना हो, हमें उसे पढ़ना चाहिए सर? इसमें ये होता है कि इन केस की यू हैव डन सम मैथमेटिक्स एट वन स्टेज ऑफ द लाइफ, ठीक है, आपने यस कभी सर, तो किया हुआ है 6 यस 7 सर, यस सर। ठीक है, यू हैव डन सो दोस थिंग्स। तो उसमें ये होता है कि हमें ये होता है कि हमने वो किया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि वी कैन गेट टू द बेसिक्स। ऐसा नहीं है कि मैंने मैथमेटिक्स किया हुआ, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस है, दैट हैज बीन डन से, तो उसमें 6-7 इयर्स के बाद जो वो बेस है वो लूज हो चुका है। ये होता है कि यू हैव टू रिपीट द सेम आइडियाज अगेन एंड अगेन, तो उसमें लाइक कि डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस आल्सो, तो वो पर्सपेक्टिव आपने लेके चलना है। और जो मैथमेटिक्स है, ये आपका कैट का एग्जाम का मैथमेटिक्स नहीं है, या यूपीएससी का एग्जाम का जो होता है ना कि दैट मे बी वेरी टफ, या जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसमें भी बहुत टफ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो सिर्फ 7th-8th लेवल के हैं, 8th यस में सर। शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 7th लेवल के 6th-7th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो यू हैव टू पिक ओनली दोस आइडियाज कि ओके सर। सपोज कि यू आर गोइंग टू बी फैकल्टी समवेयर, आपके पास ये ऑप्शन आती है कि यू हैव टू टीच से मैथमेटिक्स, ठीक है, ये 6th लेवल का 8th लेवल का लाइकवाइज, तो यू हैव टू से डू ईच एंड एवरीथिंग। उसमें ये तो नहीं होता कि स्टूडेंट के पास आप जाओगे, आप बोलोगे कि नहीं ये टॉपिक तो मैंने बहुत साल पहले किया हुआ था, तो आई विल नॉट बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट दोस थिंग्स, फ्रॉम दोस थिंग्स यू हैव टू टेक से मोटिवेशन। मैं आपकी मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू नो नो सर, थैंक यू दैट सो वे, मच सर। दैट वे कि इट कैन बी मतलब डन। थैंक यू सो Very, मच सर, very, थैंक यू very, फॉर very योर nice प्रीशियस वर्ड्स। suggestion you have given, sir. चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, सीखना है, because कल स्टूडेंट को क्या मुंह दिखाओगे? I can थैंक try यू to सर, give you the practical example कि I have done से graduation BA जिसको होती है थैंक ना यू सो वो मैंने मच। की, then I did से MBA with the marketing and finance। जो मेरे को टीचिंग मतलब पहले ऑप्शन मिली ना, वो कहते हैं कि आपने स्टैट टीच करना है, मतलब स्टैटिस्टिक्स इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। मैंने उनसे सिर्फ 3-4 दिन का टाइम लिया कि गिव मी 3 और 4 डेज की, आई विल स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम द मंडे। फिर मैंने 3-4 दिन में उसमें टॉपिक्स हैं उनको किया कि एवरेजेस क्या होती हैं, दिस साइड हो गया, मोड क्या है, मीडियम क्या है, तो आई वाज एबल टू पिक से आइडियाज एंड आई वाज एबल टू डिलीवर से वेरी गुड लेक्चर। तो दैट वे दिस कैन बी डन, थोड़ी मोटिवेशन रखो, एंड इन दैट केस की जो इंटरनल मोटिवेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस आपको पहले ये बोलना होगा कि आपने एमए लिटरेचर किया हुआ है, उसमें आपकी कितनी परसेंटेज थी। आपने ये सोचना है कि यू आर ए 7th क्लास स्टूडेंट एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस सर ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि बहुत पहले स्टार्ट करना है, वी शुड नॉट वेट फॉर लास्ट मोमेंट, जो वीक एरिया है वहां पे हाँ पहले एग्जैक्टली, फोकस हाँ करके हाँ, खत्म करना है। आपको वेरी एक ट्रू जो सर, थ्रेशोल्ड है ना वो पहले डिसाइड कर लो कि दिस इज गोइंग टू बी योर थ्रेशोल्ड। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक क्वेश्चन प्रतिमा का है सर। प्रतिमा, यू कैन स्विच ऑन योर माइक। Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. कैन यू बी लाउडर? I'm audible, sir. यस। यस यस, Thank you, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर वैसे आप केवीएस मदान की बुक को पब्लिश करवाते हैं, तो जब हम उसमें सर्च करने जाते हैं सर, तो उसमें कई सारी बुक्स दिखती हैं कि जैसे अभी सर ने भी शो किया रेड कलर की बुक थी, तो उसमें कौन सी बेस्ट रहेगी सर, क्योंकि आप हर बार कुछ ना कुछ न्यू ऐड करते हैं, तो उस हिसाब से इट्स अगेन वेरी गुड क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट्स दे गेट इनटू द ट्रबल आल्सो। तो उसमें ये है कि यू हैव टू लुक इनटू द सजेशन, ठीक है, फ्रॉम द सर्टेन पीपल। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बुक है दिस कैन बी परचेज से ऑफलाइन, कि आप रिटेल स्टोर पे जाते हो तो उसमें आपके पास जो ऑप्शंस है दे आर ऑन द हायर साइड, कि आपको ये पता है कि ये बुक कैसी है, लाइकवाइज है, तो यू कैन पिक से डायरेक्ट आइडिया फ्रॉम द कंटेंट। आपको ये लगता है कि दिस टॉपिक इज वेरी इजी फॉर यू, तो उसको आप देखो कि इसमें कि इज दैट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड। She has the biggest trouble that how many colors of books you have, how many editions you have released. That depends upon the priorities of the publisher also.
सर मैंने एक बुक ली है सर, तो उसमें मुझे कुछ लगा नहीं कि जैसे कुछ मतलब बेनिफिट समझ में आएगा। हो सकता है मैं जिस तरीके से पढ़ रही हूँ शायद वो रॉन्ग हो। नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, यू आर अगेंस्ट वेरी राइट। उसमें ये होता है कि एक्चुअल में क्या है कि जो बुक है दैट हैज डेवलप्ड इट्स पर्सनैलिटी। आप समझे या नहीं कि एक पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो चुकी है। इन केस की वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन द बुक, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट बाय चेंजिंग द होल से पैटर्न। ठीक है कि बुक का पूरा पैटर्न मैंने चेंज किया, वो मैं नहीं करता, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द पर्सनैलिटी ऑफ द बुक। तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस होती हैं तो दे अपीयर इन द सेंटेंसेस ओनली, कि कहीं हमें ये लगता है कि दिस काइंड ऑफ अपडेशन इज रिक्वायर्ड, तो वी डू दैट। ये मैं सीक्रेट्स बता रहा हूँ आपको कि इन केस की यू आर गोइंग टू राइट अ बुक, so you should be मतलब that much tricky, I should say. True, very true, sir. Okay, एक question राकेश जी का है। राकेश जी, go ahead. Sir, first of all, thank you for your time. It was a dream to meet you. We were preparing for UGC. Obviously, you are like a rock star. So I'm coming to precisely my question. So, how did you manage language? Because I find your language highly accessible and at the same time academic also. And you have also given the example of Indian Express. Indian Express is also a very good example of creating a balance between a highly sophisticated or academic language of Exactly, very that true. the Hindu, and that a very popular or that copy example of that Indian that Times India and all that glossary newspapers. So how did you manage the balance between that language? Actually, I'm following that 8th edition and I'm following that book. खासतौर से ये बात मैं प्रतिमा जी के लिए कह रहा हूँ कि खासतौर से ये जो किताब जो आप देख रही हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अमेजोन पे बहुत आसानी से उपलब्ध है। यही बुक है सर मेरे पास भी। हाँ, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अमेजोन पे बहुत आसानी से उपलब्ध है और ये 2024 में कुछ महीना पहले पब्लिश हुआ। So I'm coming back to that language. So because your examples are also very accessible. So please elaborate what was in your mind while you are precisely focusing on language and examples, because your examples are very accessible day to day life and across the book. So language and examples. How did you manage the both things while writing the book? And thank you for your coming and time. Okay. Okay, you have picked a very good question again. तो उसमें ये होता है कि once की I say write some material, okay, तो I read it from a student perspective कि मैं student हूँ, मेरे 55-60% मार्क्स हैं MA में, ठीक है, कि in case कि I am able to get the concept, then it should be okay and this can be put for the say printing also. अगर मेरे को उसमें डाउट है कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा बीइंग ऑथर आल्सो, कि उसमें मेरे को ट्रबल आ रही है, कि उसमें मेरे को डिक्शनरी पिक करनी पड़ रही है, एवरी टाइम आई हैव टू पिक सम डिक्शनरी, तो उस केस में क्या है कि जो स्टूडेंट है डेफिनेटली दे विल बी इन द से हायर ट्रबल। तो उस केस का उसमें ये मैं ध्यान रखता हूँ कि आई ट्राई टू बिकम ए स्टूडेंट सो द लैंग्वेज कैन बी मैनेज इन अ वेरी बेटर मैनर इन ए क्वालिटेटिव मैनर। तो ये एस्पेक्ट है उसमें। मैं ऑथर नहीं बन के रहता ऑथर में पहले था जब मैंने उस लाइन को लिखा, जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो एज अ स्टूडेंट ही पढ़ता हूँ। तो दिस कैन बी टेकन एज अ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। Yeah, I find that language very conversational. That someone is talking to you, someone is sitting Exactly, yes. just It has in to be, front of yes. you. Fluency, Yeah, that is very important. You I have to find the maintain language the- highly conversational. Thank you. So nice Thank of you for your comments, sir. Thank you. Sir, we will take only 2 more questions. I think Sabnam. Sir, good morning, sir. Hanji, good morning. Very Yes, good sir. morning. It's a great honor to meet you, sir. Thank you so much, Prem Shankar, sir, for providing this platform. I would like to ask, sir, my question is that जब हम practice करते हैं particular topic या communication या फिर teaching aptitude, how do you suggest, sir? Because we have a set of practice papers also, previous year question papers. So एक टॉपिक हम लोग पढ़ने के बाद रिलेटेड टू दैट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स इमीडिएटली फॉर दैट टॉपिक वी हैव टू प्रैक्टिस और एल्स हाउ टू गो। सो आई एम स्ट्रक विद दिस थिंग सर। सो एक टॉपिक होने के बाद इमीडिएट प्रैक्टिस कर देना चाहिए हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पेपर से। उसमें ओके अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हाउ टू कि एग्जीक्यूट द आइडिया। जी, दैट इज योर मेन क्वेश्चन कि वी हैव गिवन से क्वेश्चन एट द 3 levels कि लाइक कि इन केस की यू पिक से एनी टॉपिक अगेन की एनवायरनमेंट का टॉपिक है 9th यूनिट है,
So you can see कि we have immersed many questions in the chapter itself, कि so that you get an immediate idea कि जो यूनिट हमने जो टॉपिक है उसको हमने डिस्कस किया है, से कि इट इज लिंक्ड विद द एसडीजीज एमडीजीज है, तो इस टाइप का टॉपिक है, तो फर्स्ट वी ट्राई टू गिव द बेसिक आइडिया ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, देन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस कि उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस है वो कौन से होते हैं, देन उसमें वी ट्राई टू आस्क कि इसमें लाइक जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें से कौन से क्वेश्चंस हैं वो पिक किए हैं, तो वी गो फॉर द मिक्स एंड मैच, तो वो आपका फर्स्ट लेवल है। सेकंड वी गो टू द प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें हम जाते हैं वी ट्राई टू एक्सप्लोर से मोर क्वेश्चंस। जो थर्ड लेवल बनता है दैट इज ऑफ द से काइंड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि व्हिच हैव बीन गिवन इन द पेपर इन द बुक, so that's the basic idea कि we try to deal with the every scenario, every kind of the scenario. Okay sir, thank you sir, thank you so much. Okay, last question by Durgeji. I think she's not available. Okay, sir. It's great honor to have a conversation with both of you, sir. With respect, I want to ask you, sir, what except things I must read to crack first paper apart from your book? तो उसमें बेसिकली यही है कि once the NTA came into picture and they started conducting the exam, तो आफ्टर सीइंग से 1 or 2 से एग्जाम्स, तो मेरी प्रेडिक्शन यही थी, रादर दिस कैन बी टेकन एज अ माय से फर्स्ट प्रेडिक्शन आल्सो, कि अल्टीमेटली द एग्जाम इज गोइंग टू बी टफ एंड टफ, कि बेसिकली क्या है कि दे आर गोइंग फॉर द आईएएसाइजेशन ऑफ द एग्जाम, कि फर्स्ट दे विल बी आस्किंग यू कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्वयं, ठीक है, वो स्वयं प्रभा है उसका पूछ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है दिस कैन बी पुट ऑन द सिमिलर लाइंस, तो ये जो क्वेश्चन है दे यूज्ड टू आस्क यू कि है, बट एवरी टाइम दे मे नॉट बी पुटिंग द सेम क्वेश्चंस कि स्वयं है उसकी फुल फॉर्म तो हमें पता है, बाकी उसके जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं उनका हमें आइडिया नहीं होता कि व्हाट टू डू देम। तो उसमें मेरी ये एक सजेशन है कि मैंने आपको ये सजेशन दी थी टू से मेनी स्टूडेंट कि इसकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है दैट शुड बी डन इन अ वेरी टाइमली मैनर। तो टाइमली मैनर में ये होता है कि यू आर एबल टू कवर से ईच एंड एवरीथिंग, कि जैसे आपको ये लगता है कि हाँ जी न्यूज़पेपर में ये आ चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें ये कहती है, तो लाइकवाइज कि यू कैन पिक डिफरेंट आइडियाज, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो I hope यू डोंट हैव टू स्टॉप एट द बुक ओनली, ठीक है, बुक से उसको आपको बेसिक आइडिया सारे मिल जाते हैं, बट आई सजेस्ट स्टूडेंट टाइम एंड अगेन कि इसमें ये आता है कि दे हैव टू पिक एवरी काइंड ऑफ द आइडिया। जैसे आईएएस के स्टूडेंट होते हैं ना कि दे आर गोइंग टू पिक से मटेरियल फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, तो आपने मटेरियल को इग्नोर नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि यू हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपको ये लगता है कि दिस इज हैपनिंग इन द मार्केट, ठीक है, उसमें लाइकवाइज तो यू शुड गो फॉर इट, एडिशनल सोर्सेज हैं, तो ऐसे आपने उनकी एक कलेक्शन है वो करके चलनी है कि वंस यू अपीयर इन द एग्जाम, तो उसमें ये नहीं है कि यू आर सरप्राइज्ड कि भी ये क्वेश्चंस है ये ऐसे वैसे पूछे जा रहे हैं। तो मेरे कांटेक्ट में एक स्टूडेंट है सोनिका शर्मा आल्सो, तो शी इज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो शी विल कम विद द सेम क्वेरीज कि जो सर है उसमें हमारा जो प्रोसेस है अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, तो लाइकवाइज। Sir, one more question is from my behalf. How much time a student must dedicate to your book per day? In means of time, hours, 2 hours, 3 hours per day, because it is a continuous journey and one must not break it. I consider as far as. So, how much time is required per day to continue with your book, so that he may crack the exam with confidence? It depends. कि in case कि you go for the timely say decision कि आपने यू हैव टू बिकम ए फैकल्टी मेंबर, यू हैव टू बिकम ए प्रोफेसर, तो आपको ये लगता है कि ये जर्नी आपने स्टार्ट की हुई है 2 या 3 साल पहले, तो देन यू पिक से एवरी काइंड ऑफ द थिंग कि आपने 15-20 मिनट है 1 आवर है, ठीक है, वो आपने डिवोट करना शुरू कर दिया टू दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटीज। तो डेफिनेटली जब आपने एग्जाम देना है तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम पैटर्न, ठीक है, 1 घंटा डिवोट किया, दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ। अगर आपने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2 मंथ्स अगो कि हाँ जी जो एग्जाम है आपने देना है उसकी दिसंबर की डेट आने वाली है, ठीक है, यू पिक द आइडियाज, डेफिनेटली यू हैव टू डिवोट सम मोर टाइम, जबकि वो टाइम वो होता है कि जो आपको पेपर 2 पे भी करना चाहिए। That way. You have to make a balance between the two kinds of the situation. In case की depends upon the stream also, कि स्टूडेंट है जिसने एमकॉम किया हुआ है, तो मैं उसको ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि हाँ जी आपने मैथमेटिक्स है, इट इज टू बी डन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, इसकी आप 1 घंटा प्रैक्टिस करो ये वो, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। उस केस में ये होता है कि आपने उसकी जो ऑलरेडी की मैथमेटिक्स है दे कैन बी गुड इन दैट, ठीक है,
अब जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट है दे कैन बी गुड इन द कॉम्प्रिहेंशन कि दे कैन पिक द आइडिया कि व्हाट इज गिवन इन इट. तो इट डिपेंड्स अपॉन द से वर्सेटिलिटी ऑफ द स्टूडेंट कि उसमें कितनी वैरायटी है, कितनी उसमें डाइवर्सिटी है. तो अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द आइडियाज एंड दे कैन सीक द हेल्प ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स आल्सो. उनको मतलब दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई सजेस्ट कि उनको अपना एक ग्रुप है वो भी बनाना चाहिए. 3-4 स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है, सो दैट दे कैन एक्सचेंज द आइडिया कि उनको ये लगता है कि भैया ये आइडिया मेरे माइंड में आया है तो दिस कैन बी शेयर्ड. तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोराइजेशन है दैट गोज इनटू द बेटर डायरेक्शन कि आपको लगता है कि दिस कैन बी मेमोराइज्ड. ठीक है, ये एस्पेक्ट है, ये भी आपके काम करता है. तो मेरे को ये लगता है कि आइसोलेशन में आपकी जो प्रिपरेशन है दैट शुड नॉट बी डन. इट शुड बी डन इन द से एसोसिएशन विद द फैकल्टी मेंबर, या बुक है, या आपके टीचर है, या जो यूट्यूब रिसोर्सेज अवेलेबल है लाइकवाइज. तो यू कैन पिक द आइडियाज फ्रॉम एवरीवेयर. तो उसमें मैं इतना बाइंडिंग नहीं होता कि हाँ जी आपने यही करना है, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू द एंड ऑफ द वर्ड. उसमें क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं. तो अगेन कि ये हम बुक में एक आइडिया दे देते हैं आपको कि दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन, इसमें ये सब आइडियाज गिवन है. तो उसकी आप फर्दर एक्सप्लोरेशन चाहते हैं तो दिस कैन बी डन. वैसे मैंने आई ट्राई कि उसमें सबका एक बेसिक आइडिया आपको मिलता ही रहे, तो वही मतलब ट्राई टू डू दैट. ठीक है, एंड इन ए वेरी बैलेंस मैनर कि उसमें ये नहीं होता कि आपने उसको कि उसके नोट्स बनाने हैं, इवन दैट मे नॉट बी रिक्वायर्ड. एक आपकी जो रीडिंग है ना, इंटरेस्टिंग रीडिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको बोलता हूँ कि इसके नोट्स बना लो. तो नोट्स बनाने से आपका पर्पस उतना ज़्यादा सर्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि एग्जाम है तो दैट इज से गेटिंग से ब्रॉडन्ड. ठीक है, तो उसमें ये जितने भी टॉपिक्स हैं तो उनको एकोमोडेट करना दैट बिकम्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो इसलिए जितना पढ़ सकते हो, जितना आपको लगता है कि दिस कैन बी यूजफुल टू यू, और जितना बुक्स में गिवन है, तो यू हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग. मैं बाइंडिंग नहीं कर रहा किसी की, वो बाइंडिंग थी कि भैया 40% आपने मार्क्स लेने हैं, ठीक है भैया जितना बुक्स वक्स में दे रखा है उतना पढ़ लो, ठीक है, इससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं होता. तो दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो. अब जो एग्जाम है दिस हैज बिकम्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव कि जो बच्चे हैं उनको भी आइडिया हो चुका है, कैंडिडेट्स को भी, कि भाई इसमें कि दे हैव अपेयर्ड इन द एग्जाम्स एट ट्वाइस थ्राइस लाइकवाइज. तो दे गेट्स अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस थिंग्स. तो एग्जाम का जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग मतलब कीपिंग इन व्यू द कंपटीशन, तो यू शुड ट्राई टू गो फॉर ईच एंड एवरी रिसोर्स. थैंक यू सर, थैंक यू. जिसको जितनी भूख है उतना खाओ, सर का कहने का मतलब. In fact, sir, I wanted to know whether 2 hours, 3 hours per day is necessary. Dedication will carry out 2 hours. 2 hours. For 6 months Three hours this can be very burdensome also. It depends कि अगर आप जैसे already you are going to some institute, तो 2 hours है, even that is a big task. कि आपने 2-3 घंटे अपनी स्टडी में लगाने हैं, you are attending some institution also, तो उसके इसमें जो मैनेजमेंट है this can be very difficult. तो इन केस की you are working on it only, ठीक है, कि आपने एग्जाम ही देना है, तो that is the sole मतलब ड्यूटी you are going to do. तो उस केस में होता है कि यू कैन डिवोट मोर टाइम, 3 आवर्स भी हो सकता है. पहले आपने स्टडी कभी की नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट कि यू हैव नॉट डन से एनी स्टडी. आपको ये लगता है कि एमए एमकॉम करने के बाद आपको ध्यान में आता है कि दिस कैन बी टेकन एज ए करियर ऑप्शन. तो उस टाइम जो आपके पास टाइम है वो लिमिटेड है, तो यू हैव टू सिट डिवोट से मोर टाइम. इसलिए मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि इसकी जो प्रिपरेशन है दैट शुड बी डन इन ए वेरी टाइमली मैनर, ताकि आपको एक इजीनेस रहे. बिकॉज मतलब दिस कैन बी टेकन एज अ ओनली वाइबल मतलब इंडस्ट्री, जो जिसको हम कहते हैं ना कि एजुकेशन इंडस्ट्री है. इन केस की आई ट्राई टू टॉक अबाउट द यूपीएससी एग्जाम, तो उसमें भी सम काइंड ऑफ डाउनफॉल इज मतलब सीन. ठीक है, ये इंडस्ट्री अच्छी है तो इट शुड बी टेकन विद अ वेरी प्रैग्मेटिक माइंड. तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन स्टार्ट द थिंग्स. थैंक यू सर, थैंक यू. आपने इसमें इन केस की मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि इसमें टाइम पे हमने डिवोट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट आल्सो. तभी हम वी कैन स्टार्ट सम डिसीजन. ठीक है, कि स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. इसमें ये होता है कि आपने जो टॉपिक्स हैं उनकी आपने प्लानिंग कर लेनी है कि ये टॉपिक्स हैं 50, 60, 40 जितने भी टॉपिक्स निकलते हैं, तो उसकी आपने प्लानिंग कर लेनी है कि फर्स्ट डे यू आर गोइंग टू डील विद द 2 टॉपिक्स. तो उसको आपने कंप्लीट करना है. दिस माइट बी टेकिंग से 3 आवर्स 4 आवर्स. और कई टॉपिक हैं ईजी भी हो सकते हैं. मैं उस सीन को ध्यान में रख के कर रहा हूँ कि जब आपके पास मतलब यू हैव टू प्रिपेयर ओनली फॉर द एनटीए एग्जाम. आपने और कुछ नहीं करना. यू आर नॉट से अटेंडिंग एनी इंस्टीट्यूशन. आपके पास फुल टाइम है, 24 आवर्स है, तो अकॉर्डिंगली जो टाइम है दिस कैन बी इंक्रीज्ड. Generally, sir, what are the tough areas of your book which a student find that is very difficult, very tough, and it is in a hazy condition? कौन से units हैं जो tough हैं? I wanted to know. Should I ask you about your qualification? Sir, I'm PhD and MA.
PhD in English. In English, okay. तो इसका ये सिंपल आंसर है कि यू शुड डिवोट से मोर टाइम ऑन द से मैथमेटिक्स एंड द लॉजिकल रीजनिंग. इवन जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, दिस इज एक्चुअली इजी, बट देयर आर सर्टेन से टेक्निकल टॉपिक्स. ठीक है, ये 3-4 एरियाज है, तो वेयर शुड वी ट्राई टू से फोकस मतलब मोर. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द टाइमिंग एंड एफर्ट्स. तो ये आपने मतलब यू हैव टू डिसाइड कि जैसे आईसीडी का टॉपिक है, इवन दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, तो इस टाइप से आपने करना है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट कि जिसने एमकॉम किया है उसके लिए इजी हो सकता है मैथमेटिक्स, हो सकता है उसको रिक्वायरमेंट ही ना हो करने की दैट वे. उसके लिए डीआई है, दिस कैन बी वेरी इजी. जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है उसके लिए डीआई तो कुछ भी नहीं है. मैं उसको ये नहीं कह सकता कि डीआई है उसको अपने बहुत अच्छी टाइप से करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब द पर्सन हैज डन से दोस थिंग्स इन द लास्ट से 4-5 years, तो वो कर ही चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो ये आपकी बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है. अदरवाइज थैंक यू. वेरी ट्रू. एक चीज मुझे समझ आ गया कि कोई भी सब्जेक्ट जो है ना या कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता है, स्टूडेंट वीक होता है. एग्जैक्टली. In fact, long time And this happens with us also. मेरे को इस चीज yes. को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि इवन वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थिंग्स, कि हमारे लिए भी सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे नहीं है, बुरे नहीं है. अब मेरे को जो 6 यूनिट है, इन केस की यू आस्क्ड अबाउट द 6 क्वेश्चन, तो दैट वाज रियली वेरी वेरी टफ फॉर मी. तो उसमें मैंने हेल्प ली कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं. तो अकॉर्डिंगली आई स्ट्रक्चर्ड द एग्जाम, कि जो डिस्कशन पार्ट है उसको मैंने स्ट्रक्चर किया कि दिस कैन बी टफ एरिया. ठीक है, इसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं, उसमें इंडियन फिलोसफी है वो भी आती है, इसमें जो अरिस्टोटल है वो भी आते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी है वो भी आती है. तो यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम, कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है. दैट कैन बी जिसको हम कह सकते हैं दिस कैन बी टर्म्ड एज अ रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हमने वहां से स्टार्ट किया है कि व्हाट शुड बी आवर एक्चुअल प्रोडक्ट. जनरली क्या है सर, बाकी आप सब्जेक्ट का प्रिपेयर करते हैं ना, तो यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन सब्जेक्ट. हाँ, एग्जैक्टली. When you're preparing the book for paper 1, you have to be the master of all subjects. हाँ. तो इसमें हिट एंड ट्रायल है, बट दैट इज ए डूएबल जर्नी. टफ नहीं है, मतलब उसमें ये है कि टाइमली एग्जीक्यूशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये लगता है कि आपने ऑलरेडी मतलब यू हैव स्टार्टेड द थिंग्स 2-3 years बैक है, तो आप जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है उसको पिक कर सकते हो, कि दिस कैन बी द लॉजिकल रीजनिंग, दिस कैन बी मैथमेटिक्स, दिस कैन बी डीआई आल्सो. अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए डीआई बहुत टफ होता है, दे विल नॉट लुक एट द क्वेश्चन इटसेल्फ, वो सोचेंगे ये टफ ही होने वाला है. तो ये आपकी जो माइंड की जो कंडीशनिंग है ना, वो नहीं होनी चाहिए कि ये टफ है, ये इजी है. Very true, sir. Very true. Very true. So, sir, now I'll be summarizing few points which really hit me and also the community. और आज के सेशन में बहुत अच्छा चीज मुझे लगा कि एक हर ऑथर के अंदर सबसे पहले एक स्टूडेंट होना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट की फिलॉसफी उसके प्रॉब्लम्स को समझ सके. इट वाज रियली हार्ट रेंचिंग फॉर मी. एंड ऑल्सो आपने जितने भी सजेशंस दिए कि पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, टाइम देना शुरू करो. डू नॉट रन इन द लास्ट 2 months 3 months. आप पढ़ने जाओगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा. एग्जैक्टली. उसमें रिवीजन टाइम भी आपका कवर नहीं होता, इफ यू आस्क फ्रॉम मी. तो इसमें जो 6 month पर्सपेक्टिव है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. True. And the most inspiring thing what I personally liked is what is the source of your energy. That is your lifestyle. Dynamic mind, creative mind. That's really inspiring, sir. So I really thank you for your taking precious 1 hour, sir. I understand this is invaluable and it cannot be repaid by any means. And thank you so much. Thank you for your. सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज आपने 1 घंटा दिया, I'm damn sure कि बहुत सारी जिंदगी आज बदलने वाली हैं. Thank you very much. So you are giving a very nice service to humanity in many forms, and I'm really thankful for your generous effort and accepting my request, sir. Thank you so much for joining the session. Thank you very much, and all the best to the students.